for which the function may be tends to infinity? Is it? Tangent to a curve at infinity. Tangent at curve at infinity. That is the definition. Okay. So, just see. So suppose we are taking this curve. Hey, phone mat le jana. Are you able to see the screen? Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Suppose I have this curve, and suppose this is a straight line. देखो मैंने टच करवा दी. ठीक है, this is a straight line. Okay, if I take any point P on the straight line which is going to infinity, so when it recedes to infinity along this branch, the perpendicular distance of P from the line tends to 0. आपको फाइनाइट में ये टच करता नहीं दिखाई देगा, हमेशा ध्यान रखना. But it will be the tangent at origin. वही ना, perpendicular when P goes to infinity, the perpendicular distance of the point P along this branch, and the asymptote exists only for the infinite branches of the curve. You know, you aware na? If the finite branch is only there, then there will not be any asymptote. So asymptote is defined only for the infinite branch of the curve, that branch which goes to infinity, and that straight asymptote is the, we can say in very simple way, asymptote is the asymptote of the curve at infinite branch of the curve at infinity. Okay, और इसको define कैसे करते? This is the standard definition. Suppose we have a straight line, then that straight line is said to be the asymptote of this infinite branch of a curve if, as the point P recede to the infinity along the branch, the perpendicular distance of P from the line tends to 0. Okay, and by using this definition only, we can find the shortcut method to find the asymptote of any curve. ठीक है, so कैसे हम दिखाते हैं इसको? Suppose किसी भी लाइन का जनरल इक्वेशन क्या होता है? What is the equation? General equation of the line? y is equal to mx. Y equal to mx plus c. बिल्कुल सही. Y is equals to mx plus c. Suppose this is the equation of the straight line. So what is the asymptote? Then for the asymptote, m is limit x tends to infinite y upon x, and for a particular value of m, c is equals to limit x tends to infinite y minus mx. This is the definition. कैसे कर सकते हो इसको? जैसे what is the, suppose the curve perpendicular distance क्या होगी इस कर्व की? Anyone can explain? From the point xy क्या होता है perpendicular distance का? xy y minus mx minus c divided by under root of mx minus c upon root x square plus Under root में 1 plus m square. 1 plus 1 m plus m square. M square. 1 plus m square, right? So from this concept, this is the perpendicular distance P. So as x tends to infinity, या y tends to infinity, P tends to 0. P tends to 0. When it is possible, जब P 0 को tend करेगा, तो limit x tends to infinity, y upon x will become m. और इसमें जब हम वैल्यू रखेंगे तो c की वैल्यू हो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी y माइनस mx. Just wait, I am coming. Just one problem is there.
Yeah, I am back now. Yes. अच्छा, एक बात बताइए, आप लोगों ने जो मैंने क्वेश्चन दिए थे वो किए थे? मैम उसमें प्रॉब्लम Yes, जाती ma'am. मैम हाँ बेटा, मैम वो प्रॉब्लम जाती है उसमें, मतलब वो लिमिट्स, मतलब टेलर्स थ्योरम वगैरह में ना वो ये करना पड़ता है। टेलर्स, फिर से बोलो बेटा, कौन सा क्वेश्चन की बात करें? टेलर्स थ्योरम? हाँ, टेलर्स थ्योरम में मैम उसमें भी लिमिट मतलब रेंज डिफाइन करनी पड़ती है। बेटा वो तो होती है, लेकिन इसमें तो डायरेक्ट आप टेलर्स थ्योरम का यूज करेंगे ना टर्म्स के लिए। हाँ इनइक्वालिटी यूज करोगे बच्चा। मैम वो एलएमबीटी में जो है ना रेंज के लिए ना थोड़ी प्रॉब्लम जाती है। किसमें? एलएमबीटी के इसमें नहीं क्या मैम? नहीं बेटा, मैं बताया तो, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जैसे कि वो यूवी का क्वेश्चन है तो उसमें क्या रेंज हाँ। लिए हो? क्या रेंज लिए हो बताओ? tan 0 to infinity होगा ना, मतलब x belongs to u। नहीं नहीं, आप इंटरवल अपने आप से डिफाइन कर सकते हो बच्चा। मैम वही तो उसी में प्रॉब्लम जाती है मैम, वो तो इंटरवल कैसे, इंटरवल वो इंटरवल ही नहीं जमता है, इंटरवल में ही प्रॉब्लम जाती है। नहीं, देखो तुमको आर्बिट्रेरी इंटरवल कंसीडर करना है। ओके। आर्बिट्रेरी इंटरवल अकॉर्डिंग टू योर नीड। जब इनइक्वालिटी प्रूव करते हैं तो अकॉर्डिंग टू योर नीड यू हैव टू चूज द इंटरवल। तुमने इसमें तो v और u का इंटरवल लिया होगा ना, जो एक क्वेश्चन मैंने दिया था, tan इनवर्स v माइनस tan इनवर्स u। यस मैम, तो वो अपने हिसाब से कुछ भी, मतलब जो रियल नंबर्स में आ जाते हैं। देखो देखो सुनो, जो थ्योरम है वो आर्बिट्रेरी इंटरवल के लिए डिफाइन है, तो वी विल डिफाइन इंटरवल आवरसेल्फ, बट फॉर दोज इंटरवल आवर रिलेशन शुड बी सेटिस्फाइड। आवर रिलेशन शुड बी सेटिस्फाइड। यस मैम। ओके, यस मैम। ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस मैम। And ma'am, for the inequality proof for LMVT, we can directly find f dash x and prove that. Is that okay? We can directly find F dash x and we can prove it like shifting inequality left hand side and then proving it to be greater than or smaller than 0. मैंने क्वेश्चन बेटा, I have done one question ना खुशी? Yes ma'am. That question, just see, in order to prove the inequality, only your concentration should be on your final result, and for that final result we, by using the LMVT theorem, we will find that inequality. अब उनके बीच में आपको क्या करना है? बीच में हमने कुछ कॉन्सेप्ट, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट भी लगाए थे। Am I? Yes ma'am. In between concept you have to use yourself. Yes ma'am. Okay na, there is no problem. You take the interval, only you should take care of one thing. Whatever you are taking, that should be correct, that should be right according to our mathematics. ठीक है बच्चा? Yes ma'am. कॉन्सेप्ट बहुत सारे हो सकते हैं ना। सो just see, when we will when x tends to infinity, p goes to 0, that means limit x tends to infinity. Don't be confused, मैं इसको y भी ले सकती हूँ, क्योंकि जैसे इंफिनिटी पे पॉइंट जा रहा है तो x भी इंफिनिटी जा रहा है, y भी इंफिनिटी जा रहा है, लेकिन we are consider x. अगर हम y अपॉन x ले रहे हैं तो y अपॉन x की फॉर्म बनाएंगे, y ले रहे हैं तो x अपॉन y की, बट स्टैंडर्ड फॉर्म में we take x tends to infinity, so it will become 0. ठीक है, so limit x tends to infinity, जो भी इंफिनिटी होता है हम जनरली उसको क्या ट्राई करते हैं कि वो अपोन में आ जाए, y अपॉन x माइनस m माइनस c अपॉन x इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, so from this what we get,
C upon x, C upon infinity will become 0. So limit x tends to infinity, y upon x is equals to m. Now you can ask me, ma'am, why we are taking this infinity and why we are not taking this infinity? Because y is also variable. Y is also tending to infinity when x is tending to infinity for that point. Am I right? So the limiting concept gives us this. This is the slope for the asymptote. ठीक है, ये हमने निकाल लिया. और for a particular value of m, limit x tends to infinity, इसी फॉर्मूले से हम निकाल रहे हैं. Limit x tends to infinite, c is a constant, y minus mx is equals to c. Okay, so this is the definition of the asymptote. अब इसमें कई तरह से क्वेश्चंस आते हैं. First I will do the problem which is based on definition. After that I will tell you the shorter method to find the asymptote, but you should know the concept also. So what first question is, by using the definition of asymptote, find the asymptote of the following curve: x cube plus y cube minus 3axy is equals to 0. So हमें m कैसे मिलेगा, स्लोप कैसे मिलेगा? अच्छा, एक चीज और मैं बता देती हूँ, ये मैं सबसे पहले बताना था और भूल गई. नंबर ऑफ एसिम्प्टोट, एनीवन कैन टेल मी द नंबर ऑफ एसिम्प्टोट फॉर ए कर्व ऑफ डिग्री n? n. And this is the maximum number of asymptote. So if our curve degree is 3, then maximum number of asymptote of this curve will be 3. Maximum means the number of asymptote may be at most 3. उससे ज्यादा नहीं हो सकते, but जरूरी नहीं asymptote exist ही करे. If a curve contain only finite branches, then the asymptote will not exist. For example, for the circle there is no asymptote. For the for the ellipse there is no asymptote, because these curves do not have any infinite branch. Okay, so how we can know? If we can find the real value for m, then we are assured that this asymptote will exist. Suppose we are not finding a real value for m, then asymptote will not exist for that particular curve. So what is the procedure? So what you will do, you will form y upon x form for the equation. This is the definition method. मैं ये भी करवा रही हूँ, आप जरूरी नहीं इस मेथड से करें, लेकिन मुझे बताना है क्योंकि आपको पता होना चाहिए. So जो maximum power of x है, divide the equation with maximum power of x. So that will become y upon x raised to the power 3 minus 3a y upon x into 1 upon x is equals to 0. ठीक किया मैंने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, now take limit x tends to infinity. So it will become 1, limit x tends to infinite, y upon x का cube minus limit x tends to infinite, 3a y upon x 1 upon x. ठीक है, तो ये वैल्यू 1 ही रहेगी. ये क्या बन जाएगी? m क्यूब, और ये हो जाएगा 3am into 1 upon infinity means 0. So 1 upon m cube is equals to 0. So when we will find the value of m from here, how many real value we will get here? Only 1. M is equals to minus 1. Other values are imaginary. क्या है? Imaginary. If m values are coming imaginary, so there exists no asymptote for those value, means only one real asymptote exists for this curve. Is it all right? Yes, ma'am. Now we will calculate c for this particular value of m. What is c? C is nothing but limit
x tends to infinite y plus mx. Oh, y minus mx. I have told you this formula. Just tell me, by using the definition to calculate the to find the answer is little difficult, क्योंकि c की वैल्यू निकालना इतना इजी नहीं है. यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आप देखो यहाँ पे जैसे आपने जिस पर्टिकुलर m के लिए निकालना है वो वैल्यू अब हम लेके चलेंगे. तो लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट y क्या हो गया, y प्लस x प्लस एक्स y प्लस x. हम क्या करेंगे, y प्लस x को कोई नंबर वेरिएबल मान लेंगे. सपोज मैंने माना अल्फा, तो c क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट अल्फा. अब मैं इस कर्व के लिए c की वैल्यू निकालूंगी. ठीक है, तो अब हम ये वैल्यू जो है y प्लस x इज इक्वल्स टू अल्फा हम गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व में रखेंगे, आइदर इन टर्म्स ऑफ x ओनली और इन टर्म्स ऑफ y ओनली. सो आई एम कीपिंग अल्फा माइनस x, मतलब एक वेरिएबल में इसको कन्वर्ट करेंगे. तो कर्व की इक्वेशन क्या है, x क्यूब प्लस y क्यूब माइनस 3axy इज इक्वल्स टू 0. x क्यूब प्लस अल्फा माइनस एक्स क्यूब, क्योंकि हमने x की लिमिट इंफिनिटी की हुई है ना, तो इसलिए हमने इसको y को इसमें हटा दिया. अल्फा इज y प्लस x. ठीक है, और लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी अल्फा जहां भी आएगा that will be taken as c, and in that case we will calculate the value of c. So x alpha minus x whole cube minus 3ax alpha minus x is equals to 0. Anyone can tell me the value of c? इसको हम सॉल्व करेंगे. अल्फा क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस 3 अल्फा स्क्वायर एक्स प्लस, ओनली मैंने सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला यहाँ पे लगाया है, 3ax अल्फा प्लस 3ax स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, नाउ ये आपका कैंसिल हो गया. ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक आ जाएगा एक्स स्क्वायर का टर्म, क्योंकि हमें एक्स की लिमिट लेनी है तो हम एक्स स्क्वायर को, एक्स की टर्म्स को कलेक्ट करेंगे. तो इट विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स की टर्म्स जितनी है, एक्स की टर्म कितनी है, अल्फा स्क्वायर प्लस ए अल्फा एक्स प्लस अल्फा क्यूब अब इज इक्वल्स टू 0. अब इसमें अल्फा की हाईएस्ट पावर से वी विल डिवाइड विद द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, so that x comes in the denominator only. Then we will take the limit x tends to infinity. So you will get 3 alpha plus a minus 3 alpha square plus a alpha upon x plus alpha 3 x square is equals to 0. Now take क्या, x टेंड्स टू इनफाइनाइट. जब हम x टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे तो अल्फा क्या बन जाएगा, c. a इज ए कांस्टेंट. जब हम x टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे ये तो c बनेगा, और c अपॉन इन्फिनिटी, कांस्टेंट अपॉन इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू 0, कांस्टेंट अपॉन इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू 0. दैट मीन्स इज इक्वल्स टू 0. so c वैल्यू विल कम माइनस a. so what is the equation of asymptote? Equation of asymptote will be y is equals to mx plus c. So c माने a. तो क्या इक्वेशन आई asymptote की, y plus x plus a is equals to 0. देखो ये चीज मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मोस्टली नहीं पढ़ाते हैं, बट यू शुड नो द कॉन्सेप्ट. अभी शॉर्टर मेथड पे आ जाएंगे. शॉर्टर मेथड मीन्स उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, but you should know what is the concept, because shorter method has been derived with the definition only. This is the definition based solution. So what is the procedure? So whatever given curve is given to you, so you make that infinity, x tends to infinity, and for this we divide the equation of curve with the highest power of x, and then we make the form of y upon x. Then we put x, limit x tends to infinity, and where y upon x is coming, that will convert it into m.
from that we will calculate the values of m. If m values are coming real, so that number of asymptote will exist for that curve. Now for that particular m, we will find the value of c, यानी कि intercept. Then the c formula is limit x tends to infinity. So again we have to come to the curve equation because that is asymptote for that curve now. So with the help of the curve we will calculate the value of c by this procedure. ये तो हुआ पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए. इवन ये आप जानते हैं जनरल भी आपको इसी तरह से ही निकालना होगा. जनरल फॉर्मूलेज जो आए हैं दैट इज ओनली ड्यू टू दिस डेफिनेशन. सो यू शुड नो हाउ वी आर कैलकुलेटिंग द एसिम्पटोट बाय यूजिंग द डेफिनेशन. बेटा आप लोगों ने एसिम्पटोट किए हैं, कभी निकाला है कर्व के लिए? हैव यू डन? No, ma'am. Yes. No, ma'am. नहीं, But वो मैं बट कॉन्सेप्ट पता है ना. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब हम आते हैं शॉर्टर मेथड्स पे. ठीक है, शॉर्टर मेथड्स में हम क्या करेंगे, एसिम्पटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड एसिम्पटोट पैरेलल टू वाई एक्सिस. अब मैं आप लोग, क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा समय नहीं है, मैं आपको थ्योरी इसकी लिख के दूंगी. ठीक है, बट मैं डायरेक्ट इसका फॉर्मूला भी बता देती हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जनरली believe on that formula directly, and obviously in the M1 there will not be asked too much theory to you, only question will be asked. Mostly student want only formulas and question, so I am doing in the lecture, but in the theory I will give you the concept also. You will read. If anyone want to find the concept, want to read the concept, that concept you can read from my notes. Am I right? ठीक है? Yes, ma'am. Or Okay, ma'am. if anyone Yes, is ma'am. getting confusion in those things, you can discuss with me. No problem. ठीक है? I will discuss because no, अभी क्योंकि ये theoretical part है, theoretical part में बहुत ज्यादा समय लेगा. It will take lot of time, है ना? तो फिर number of lecture वैसे भी हम लोगों के पास इस बार 34 ही है, तो बहुत टाइम लेगा. But I am here. If you want to understand the things, I am here. Okay बच्चा? ठीक है. सो सबसे पहले जो शॉर्टर मेथड में आता है, मैं आपको बिल्कुल ट्रैक्स में बताऊंगी. शॉर्टर मेथड, हाउ वी कैलकुलेट द asymptote. So first of all, I am coming on the asymptote which are parallel to x axis, asymptote parallel to y axis and asymptote parallel to x axis. जरूरी नहीं है वो एग्जिस्ट करें, जरूरी नहीं है वो एग्जिस्ट करें. ऑलवेज बी टेक केयर ऑफ दिस. सो एसिम्पटोट पैरेलल टू वाई एक्सिस प्रूफ मैं आपने नोट्स में आपको दे दूंगी. ठीक है, इफ एनीवन वांट टू सी द प्रूफ इज देयर. ठीक है, एसिम्पटोट पैरेलल टू वाई एक्सिस कैसे निकालते हैं? पुट द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री of y as equal to 0. ठीक है, ओके. जैसे कि just in this curve what is the highest degree of y? 3. 3, ma'am. y raised to the power 3, coefficient of y raised to the power 3, put 0. So 1 is equals to 0. This is not an equation. So there is no asymptote parallel to y-axis. This is the concept. Okay, बच्चा? Yes, ma'am. Similarly, parallel to x-axis कैसे निकालते हैं? The same thing. Put the coefficient of highest degree of x as equal to 0. I have proved कि क्यों रखते हैं 0 और कैसे निकलता है. Don't worry, you can see the and proof is not too difficult. It's simple, but it takes time. So I'm not proving that. Okay. Similarly, suppose in this question you put coefficient. What is the highest degree of x? Is 3. The coefficient is 1. 1 is equals to 0 means
नो asymptote. So इस कर्व के लिए there is no asymptote parallel to x axis and parallel to y axis. ठीक है बच्चा? अब मजेदार बात ये है, we know that how at most how many asymptote can be there, the number of degree of the particular curve. Suppose in your curve the degree of curve is 4. Degree of curve is 4. So you have to find only 4 asymptote. They may be real, they may be imaginary. Just see here, just see in this question. आप मुझे बताओ m की कितनी वैल्यू आ रही है बच्चा? 1. 1 real value. 3 value है, but 3 value आ रही है. 3 है ना? 2 are imaginary. So we are saying that all the 3 value exist, but 2 are imaginary, means 2 asymptotes are imaginary. चले गए, लेकिन total number of 3 आया. ठीक है, मैक्सिमम 3 ही आ सकता है, उससे ज्यादा नहीं आ सकता. तो इमेजनरी वाला भी काउंट तो होता है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इमेजनरी वाला काउंटिंग में काउंट होगा, बट वो आएगा नहीं. गॉट इट और नॉट? तो इसी Yes. तरह से सपोज आपने अपने कर्व के लिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस एसिम्पटोट निकाले, और कुल मिला के 4 डिग्री कर्व है और 4 ही एसिम्पटोट निकल गए. एम की 4 वैल्यू आ गई, चाहे वो रियल आई चाहे वो इमेजनरी आई. दैट मीन्स आपका क्वेश्चन कंप्लीट. और अगर ऐसा नहीं है देन यू हैव टू मूव फर्दर. देखो मैं एक क्वेश्चन करती हूँ. दिस इज अ क्वेश्चन. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स माइनस, अभी आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि मैडम अभी आप दो ऊपर क्वेश्चन करके आए हैं, उसमें तो निकले ही नहीं एसिम्पटोट, निकलेंगे कैसे पैरेलल टू? जस्ट सी दिस क्वेश्चन, जस्ट सी दिस क्वेश्चन. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स माइनस ए वाई स्क्वायर. नाउ दिस क्वेश्चन इज कमिंग इन योर एग्जाम. जस्ट इमेजिन. सो you will think, you don't know how many asymptotes are there, you don't know how many parallel, how many oblique asymptote. So just see the equation of the curve, right? So what is the maximum degree of this curve? 3. 3. 3. So 3. maximum number of asymptote will be 3. Maximum number of asymptote will be 3. So जब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं then we start with parallel asymptote. सबसे पहले हम निकालेंगे पैरेलल टू वाई एक्सिस. तो पुट द हाईएस्ट टर्म ऑफ वाई इक्वल टू 0. बताओ वाई की हाईएस्ट डिग्री क्या है? ओनली वाई. x minus a. वाई की हाईएस्ट डिग्री क्या है? वाई स्क्वायर. तो उसका कोफिशिएंट हुआ x माइनस a इज इक्वल्स टू. तो दिस इज द एसिम्पटोट पैरेलल टू वाई एक्सिस. 1 एसिम्पटोट मेरा निकल गया. अब आते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस. पैरेलल टू एक्सिस, व्हाट इज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ एक्स? 3. 3. 3 का कोफिशिएंट क्या आ रहा है? 1. 1 is equals to 0. There means no asymptote. Parallel to x axis. ठीक है बच्चा? यानी कि जो बाकी 2 asymptote है वो दूसरे एसिम्पटोट होंगे. ऑब्लिक, उनको बोलते हैं ऑब्लिक एसिम्पटोट. ऑब्लिक एसिम्पटोट. ठीक है. अब ऑब्लिक एसिम्पटोट का क्या प्रोसीजर है अब मैं आपको बताऊं. ठीक है. ऑब्लिक माने जिसमें y इज इक्वल्स टू mx प्लस c आएगा. ठीक है. इक्वेशन तो वही रहेगी. m की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी होगी. तो वो तो मैंने डायरेक्ट तो बताया ना, मेथड बाय डेफिनेशन. बाय डेफिनेशन मैंने मेथड बताया ना. अब उस डेफिनेशन को यूज करते हुए हम इसके लिए एक जनरल मेथड निकालेंगे एंड दैट विल बिकम द फॉर्मूला फॉर अस. दैट विल बिकम द फॉर्मूला फॉर अस. ठीक है. Okay. तो हम जाते हैं ऑब्लिक एसिम्पटोट की तरफ. अब जस्ट सी द जनरल इक्वेशनल एल्जेब्रिक इक्वेशन. कोई भी कर्व की हम एल्जेब्रिक इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं. vn minus 1 vn minus 2
and so on, v2, v1, v0 is equals to 0. ठीक है, ये क्या है जानते हो? This what is a vn minus 1. Suppose the curve degree is n. तो whatever the terms which are homogeneous term of degree n, जैसे कि मैं यहाँ पे कहूँ इस क्वेश्चन में कि 3 डिग्री की कितनी टर्म्स हैं? 3 डिग्री की कितनी टर्म्स हो गई यहाँ पे? 2 टर्म्स. 3 डिग्री की कितनी 2 टर्म्स हैं? तो इसको हम बोलेंगे v3. v3 क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर x. यहाँ x और y नहीं ले रहे हैं, टोटल डिग्री ले रहे हैं. v2 क्या हो जाएगा? माइनस ए वाई स्क्वायर. ठीक है, समझ में आ गया? सो vn is the set of all terms which is the homogeneous expression for degree n in x and y. Similarly, vn minus 1 is the homogeneous expression of degree n minus 1 in x, y and so on. ठीक है, क्लियर? इसको इन जनरल में क्या लिख सकती हूँ? vr. What is vr? Where vr is the होमोजीनियस. होमोजीनियस माने हर टर्म की डिग्री सेम होगी. होमोजीनियस एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री आर इन एक्स एंड वाई, दोनों का डिग्री काउंट करना है. सो आपने ये प्रोसीजर कई बार किया होगा. सो आई राइट वी आर होमोजीनियस फंक्शन की हो ना? कैन आई राइट वी आर एज एक्स रेज टू द पावर आर वाई फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स? करे हो इस चीज को? यस मैम. यस मैम. डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे ये था आप लोगों का. अभी ये लिख रहे थे हम लोग v3. यहाँ पे v3 लिखा था. v3 क्या हुआ? एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर. ठीक है, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकती? एक्स क्यूब 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर. ये क्या हो गया? एक्स क्यूब function of y upon x. Am I right or not? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. So can I write VR in this form? It's very important expression. You will see. ये Yes. proof मैं करवा रही हूँ. This is very interesting proof. ऐसे मैं ये भी कह सकती थी, but that proof is not so important. But this proof is also very important. Important in the sense you should understand how the things are coming. ठीक है. So the given equation. So the given equation of the curve can be written as कैसे लिख सकते हैं हम? जो vn है वो क्या लिखा जाएगा? x की पावर n फाई y अपॉन x. थोड़ा सिंबल को अलग अलग करने के लिए मैंने इसको नाम दिया फाई n y अपॉन x. vn minus 1 को we can write x raised to the power n minus 1 phi n minus. Just see ये phi n minus 1, these are the just symbol. You can think phi n is containing the term of all function of degree n. Phi n minus 1, it is containing the terms of degree n minus 1. Just this is a symbol. Similarly, vn minus 2 I can write x raised to the power n minus 2 phi n minus 2 y अपॉन x. ये तो पावर है बट ये सिंबल है, ये सिंबल को डिनोट करता है. ठीक है, इज इक्वल्स टू एंड सो ऑन इज इक्वल्स टू 0. राइट हैंड साइड तो करके 0 एल्जेब्रिक. सो दिस कॉन्सेप्ट इज फॉर द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फंक्शन. मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है ना बच्चा, ये फॉर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है ऑल्सो, ओनली जब कर्व की इक्वेशन एल्जेब्रिक फॉर्म में दिया हो. ठीक है, अब हम क्या करेंगे? वी कैन डिवाइड. जैसे हमने, आपको याद है ना बाय डेफिनेशन, जब हमने क्वेश्चन किया था तो उस बाय डेफिनेशन वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था? x की हाईएस्ट पावर से कर्व की इक्वेशन को डिवाइड किया था. x की रेज टू द पावर 3 से वी हैव डिवाइडेड होल इक्वेशन. वी हैव फॉर्म द y अपॉन x टर्म्स. याद है ना? वही चीज हम यहाँ करेंगे. डिवाइड बाई x रेज टू द पावर n. ये डेफिनेशन के मेथड से ही हम कर रहे हैं सब. y अपॉन x और ये हो जाएगा 1 अपॉन x फाई फंक्शन ऑफ y अपॉन x 1 अपॉन x स्क्वायर फंक्शन ऑफ y अपॉन x एंड सो ऑन. सब में आ जाएगा x अपॉन में इज इक्वल्स टू 0. फिर
हमारी डेफिनेशन क्या कहती है? लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी y अपॉन x इज m, यही तो हमने किया था ना वहां पे. देन वी हैव टेकन x टेंड्स टू इंफिनिटी and y in place of x, y upon x we have put m. So we have taken x tends to infinity, so phi n m is equals to 0 आ जाएगा, because यहाँ finite 1 upon infinite 0, 1 upon x square 0, it all terms will become 0, only first term will remain Last. first term. Yes, ma'am. First term. Phi n m is equals to 0. So what is this? This is the polynomial of degree n in m, है ना? जैसे ये क्वेश्चन था तुम्हारा, जो भी मैं एग्जांपल करके दिखा रही थी, ये बन गया था ना आपका x की पावर 3 phi y अपॉन x. जब आप यहाँ x की पावर 3 से इसको डिवाइड कर दोगे तो ये लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी क्या बन जाएगा? 1 प्लस m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, यही बनेगा ना, है ना? यही हमारा बना था इस क्वेश्चन में. तो यही 1 इस तरह से phi n m में ये बन जाएगा. दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n इन m. So we can find the values of m by solving this polynomial. याद है ना हमारे जो क्वेश्चन था उसमें हमारा पॉलिनोमियल बना था m रेज टू द पावर 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. रिमेम्बर ना, ये जो क्वेश्चन हम किए थे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3axy, यही तो बना था ना हमारा आकर के. फिर हमने इस पॉलिनोमियल को सॉल्व किया था. वी हैव सॉल्व दैट पॉलिनोमियल एंड corresponding to each value of m we have calculated c. The same thing we will do here, which gives this y and m gives the slope of asymptote. ये तो m की वैल्यू देते हैं ना, slope of asymptote. तो सपोज हमारी वैल्यू आई है m इज इक्वल्स टू m1. बहुत सारी आएंगी, हम एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए निकाल रहे हैं तो वो जनरलाइज हो जाएगी. m इज इक्वल्स टू m1. तो फिर उसके बाद हमने क्या किया था? y माइनस mx इज इक्वल्स टू c होता है. इसको अब मैं p वर्ड दे दूं क्या? बाद में c हो जाएगा, ठीक है? y माइनस mx इज इक्वल y, यही था ना, y प्लस, सॉरी मैं भूल गई, y माइनस mx इज इक्वल टू c था, ठीक है ना? c था. जब x टेंड्स टू इंफिनिटी होगा तो c किसको c इसका इंटरसेप्ट देगा, ठीक है? हमने ये वैल्यू इसके लिए पर्टिकुलरली पुट कर ली m1 के लिए. m1 इज इक्वल्स टू c. c1 अगर आप इसे कहना चाहें तो c कह दीजिए, c1 ये पहले कर्व के लिए हुआ, ठीक है? क्या किया था हमने इसको? ये हाँ, हमने जब m की वैल्यू रखी तो उसको हमने क्या नाम दिया था? अल्फा दिया था. सपोज मैं यहाँ पे p दे देती हूँ इसका. ये है ना इक्वेशन ऑफ कर्व, याद है? तो जब लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी y माइनस m1x किसको टेंड कर जाएगा? c को. यही कॉन्सेप्ट है मेरा. तो इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी p क्या हो जाएगा? p1 क्या हो जाएगा? c1. ओके, तो हमने वहां पे भी किया था ना, y प्लस m x आया था, उसे अल्फा लिख लिया था. यहाँ पे हमने y माइनस m1x को हमने p1 लिख लिया, ठीक है? क्लियर है इस चीज का? तो y अपॉन x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा m1 प्लस p1 अपॉन x. अब हम ये गिवन कर्व में रखते हैं. तो कर्व हमारा क्या था? x की पावर n, याद है ना, x की पावर n, phi n y अपॉन x. y अपॉन x को हमने क्या बदल लिया? m1 p1 अपॉन x प्लस x रेज टू दी पावर, ये वाली इक्वेशन में रख रही हूँ बच्चा, ये वाली, ठीक है ना? इसमें रख रहे हैं, ठीक है? x1 phi n माइनस 1 m1 प्लस p1 अपॉन x, ठीक है? एक्चुअली जब हम लोग पहले पढ़ाते थे ना, जब बहुत समय कम, क्लास में तो और कम टाइम मिलता है, तो स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन रहता था, मैम ऐसे क्यों हो रहा है, आप सीधा स्टेप बता दिए. तब से मैंने इसका प्रूफ करना सिखाया कि यू शुड नो व्हाट्स द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस. ओके, वी हैव डन दिस. उसके बाद क्या किया था हमने, बताओ? हमने फिर x की पावर n से इसके ब्रैकेट्स को पहले एक्सपेंड किया था, जस्ट c.
ये बिल्कुल जो मैंने शॉर्टर मेथड, ये जो प्रूफ है, इसी के बाद हमने ये किया था ना सब जगह, ये किया था, फिर इसके ब्रैकेट्स को खोल के सिंप्लीफाई किया था, फिर x की हाईएस्ट टर्म निकाला था और उसको उससे डिवाइड किया था। बस सेम यही हम इन जनरल में कर रहे हैं। डोंट बी कंफ्यूज अबाउट द थिंग्स, वेरी सिंपल, ओनली जनरलाइजेशन फॉर्म आई एम राइटिंग, सो इट मे seems difficult, but it is not difficult. I have written this. Now, अब आपको मैं वो पूछूंगी जो अभी हम करके आए हैं, टेलर्स थ्योरम, याद है? यस सर। क्या होगी टेलर्स थ्योरम, कैसे खोलेंगे इसे? ये सब एक तरह से हो गया एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस एच, तो कैसे होगा? एफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश ए। एम आई राइट? ये एक्स की पावर एन के साथ आया, फिर एक्स रेज टू दी पावर एन माइनस वन, इसको भी हमने ओपन किया, फाइव n minus 1 double dash m1 and so on is equals to 0। अब मुझे बताओ, तो कुछ टर्म्स कैंसिल आउट होंगी, कुछ इसमें बन जाएगी, तो जब तुम पावर्स को कलेक्ट करोगे तो x की पावर n 5n m1 बनेगा, x की पावर n माइनस वन के साथ, देखो x की पावर n माइनस वन ये यहाँ पे आएगा और एक यहाँ पे आएगा, ठीक है? तो x की पावर n माइनस वन का कोफिशिएंट हो जाएगा p1 5n डैश m1 प्लस 5n माइनस वन m1, फिर आपका x की पावर n माइनस टू का जो कोफिशिएंट आएगा वो आ जाएगा p1 स्क्वायर अपॉन 2 5n डबल डैश m1 प्लस p1 5 डैश n माइनस वन m1 प्लस 5n माइनस टू m1 एंड सो ऑन। ये हमने बिल्कुल जैसे वहां पे ब्रैकेट्स में कलेक्ट किया था, वी हैव कलेक्टेड ऑल द ब्रैकेट्स। उसके बाद हमको क्या करना है? हाईएस्ट डिग्री से डिवाइड कर देंगे x टू द पावर n। एक चीज और है, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? व्हाट इज दिस? 0, याद है ना? 0 है ना? m1 किसका रूट है? इसका ही तो रूट है, 5n m1, इसी से तो निकल के आया था ना m1 का वैल्यू। So it means m1 is a root of this equation, so it will become 0. So this term will become 0. ये term क्या हो जाएगी? 0. So highest degree कितना हुआ? x की पावर n माइनस वन। तो अगर हम इसको डिवाइड कर दें x की पावर n माइनस वन से और तब हम लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी लिखें तो क्या आएगा? क्या आ जाएगा? डिवाइड बाई x की पावर n माइनस वन, x टेंड्स टू इंफिनिटी, तो p1 टेंड्स टू c1 हो जाएगा। सीधी सी बात है, मैंने बताया। तो आपके पास क्या सिर्फ बाकी सब में आएगा x अपॉन x बनता चला जाएगा, ओनली दिस टर्म विल बी देयर। सो आई विल गेट c1 5n डैश m1, ये अब फॉर्मूला प्रूव हो गया आपका, n1 0, दैट मीन्स c1 का वैल्यू क्या हो गया? 5n माइनस वन m1 डिवाइडेड बाई 5n डैश m1। So this is the formula for C. Got this thing? For a particular value of m, C will come by this formula. ठीक है? हम C1 निकालेंगे तो एसिम्पटोट क्या हो जाएगा हमारा? y is equals to m1x plus c1. This is the asymptote corresponding to this one value of m. इसी तरह सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, फोर्थ वैल्यू, उनके लिए हम m के लिए c निकालेंगे एंड वी कैन फाइंड द ऑल द एसिम्पटोट। अच्छा एक बात बताओ मुझे बच्चा, अगर इसके दो वैल्यू m की दो वैल्यू सेम आ जाए तब क्या होगा? m की दो वैल्यू सेम आ जाए तब क्या होगा? तो हम प्रोसेस तो यही करेंगे। क्या होगा उसको उस केस में? मतलब टू रूट्स आर इक्वल,
इट मीन्स ये जो फाई एंड मैम दो एसिम्पटोट्स आएंगे लेफ्ट रूट्स आर राइट इक्वल। इंटरसेक्टिंग। मैम इसका मतलब ये होगा ये भी मैम- 0 होगा। टू रूट्स आर इक्वल का मतलब क्या है पॉलिनोमियल में कि दैट फंक्शन इज 0 एंड दैट फर्स्ट डेरिवेटिव इज आल्सो 0 ऑफ दैट फंक्शन। Yes, ma'am. Understood. नहीं पढ़ा है यस ये मैम तो? गॉट इट। गॉट इट ना। तो उस केस में क्या होगा बेटा, जस्ट सी, ये तो हमारा पहले ही 0 हो गया था, ये तो 0 है ही। अब उस केस में आपका अगर बोथ वैल्यूज ऑफ m आर टू वैल्यूज ऑफ m आर इक्वल, तो ये टर्म भी 0 हो जाएगी, ये टर्म भी 0 हो जाएगी। तो उस केस में कौन, अगर हम x की पावर n से डिवाइड n-1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा फाई n-1 m1 भी 0 आएगा। अगर ये 0 नहीं है तो उस केस में कोई एसिम्पटोट एग्जिस्ट नहीं करता है। और अगर ये भी 0 हो गया तो इसका मतलब फाई n-1 m1 भी 0 हो गया। देखो ये 0 नहीं है और ये 0 है तो नो एसिम्पटोट। जब ये दोनों 0 हो जाएंगे उस केस में हम ये नहीं कह सकते सी की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, सी इज इनडिटर्मिनेट। उस केस में आपकी दोनों टर्म्स 0 हो गई तो हमारी अब हाईएस्ट डिग्री बेटा कितनी बनी, x की पावर n-2। नाउ वी विल डिवाइड द कर्व बाय x रेज टू द पावर n-2 और तब हम x टेंड्स टू इंफिनिटी रखेंगे, तब हमें c की वैल्यू निकलेगी किस फॉर्मूले से, c। अब ये 0 हो जाएगा ना बच्चा, सेकंड वाला टर्म 0 हो जाएगा ये वाला, तो इससे क्या निकल के आया फॉर्मूला, c² अपॉन फैक्टोरियल 2 फाई n डबल डैश m1 प्लस c अपॉन फैक्टोरियल 1 फाई डैश n-1 m प्लस फाई n-2 m इज इक्वल्स टू 0। तो इससे हमारे पास c की कितनी वैल्यू निकलेंगी, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ c विल बी देयर, दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 and 3. So for 1 m we will get 2 value of c, so we will get 2 asymptote m1x plus c1, m2x m1x plus And c2. C2. These two asymptotes are called parallel asymptote, यानी कि ये दो पैरेलल एसिम्पटोट एग्जिस्ट करेंगे फॉर द पर्टिकुलर कर्व अगर m की 2 वैल्यू आई। इसी तरह से m की अगर 3 वैल्यू आती है तो c की 3 वैल्यू निकलेंगी, इस तरह से 3 पैरेलल एसिम्पटोट आएंगे। ठीक है, इसको मैं कंटिन्यू करूंगी बेटा, तुम लोगों की क्लास जो है हो रही है, मैं यहाँ तक के नोट्स डाल देती हूँ, उसके आगे हम नेक्स्ट टर्न पे क्वेश्चंस करेंगे एसिम्पटोट के। ओके Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay, ma'am. You write your attendance in the chat box.